یہ دنیا بڑی عجیب ہے۔ ضروری نہیں کہ اس میں آپ کسی امیر شخص کی اولاد ہیں تو آپ کی قسمت میں بھی امیری آئے گی، آپ بھی خوش قسمت تصور ہوں گے۔ دولت آنی جانی چیز ہے، دماغ خراب کر دیتی ہے۔ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا مگر قسمت نے یاوری نہ کی۔ 3 سوتیلی مائیں اور 6 بھائی۔ بھائی سوتیلے تھے کیونکہ ان کی مائیں الگ تھیں۔ سب سے چھوٹا ہونے کی نسبت مجھے ایک سازش کے تحت میری جائیداد اور میرے کاروبار سے مجھے محروم رکھا گیا۔ باپ کے ہی مجھے اور میری ماں کو ایسے نکالا گیا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ جی ہاں، میں شیخ کرامت کا بیٹا ہوں۔ جیسا کہ میرے باپ کی سرگزشت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ شیخ کرامت کے 7 بیٹے تھے، میں انہی 7 بیٹوں میں سے آخری نمبر والا ہوں۔ میرا نام شیخ ظاہر ہے، وہ شیخ کرامت جس نے حمزات کے ذریعے پراسرار طاقت کو اپنے قبضے میں لے کر دنیا جہان کے کام کیے، جن میں اچھائیاں اور برائیاں دونوں شامل تھیں۔ میرے باپ نے ہمارے لیے دنیا کی ہر آسائش اور نعمتیں مہیا کر دیں، لیکن اس میں میرا یا میری ماں کا کوئی حصہ نہیں تھا کہ دنیا سے ان کے جاتے ہی ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوا جیسے لگتا تھا کہ میں ان کا سوتیلا ہوں۔ میں شیخ کرامت کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ میں شیخ کرامت کا 7واں اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ باپ کے مرتے ہی حویلی بک گئی، اور حویلی بکنے کے بعد ہمیں جو حصہ ملا وہ برائے نام تھا۔ وہ ایک مکان کی صورت میں ملا کیونکہ بھائیوں نے وہ عالیشان حویلی بیچ دی جسے میرے باپ نے خریدا تھا، اور بات یہ سامنے آئی کہ باپ کے مرتے ہی آمدن کا ذریعہ ختم ہو گیا۔ میری عمر محض 20 سال تھی، مگر میں ان تمام باتوں کو کسی حد تک سمجھتا تھا۔ پچھلے چند سال ہم نے بڑی تکلیف میں گزارے تھے۔ میری سوتیلی مائیں میری ماں کو کام پر لگائے رکھتی اور خود شان سے بیٹھ جاتی۔ میری ماں فطرت کی سادہ تھی کہ میری سوتیلی ماؤں کی چالاکیوں کو سمجھتی نہیں تھی، اور انہیں اپنا ہمدرد سمجھ کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتی، ان کے حکم بجا لاتی۔ وہ جو کچھ کہتی وہی کرتی، میری بات کو ہمیشہ درگزر کر دیتی، اور میری بات کو ہمیشہ ایسے ہوا میں اڑا دیتی جیسے میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میرے باپ نے اتنا پیسہ چھوڑا تھا کہ شاید اس شہر میں ہمارے جیسا کوئی امیر تھا ہی نہیں، مگر سچ کہا ہے کسی نے کہ پیسہ دنیا میں سب سے بڑا وبال ہے۔ میرے بھائیوں نے اپنے اپنے کاروبار جما لیے۔ جب بھی میری ماں کہتی کہ اسے بھی اپنے ساتھ کاروبار میں لگاؤں تو ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ یہ بھی چھوٹا ہے، اس کے تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ لیکن جب کام کرنے کا وقت آیا تو ایسے طوطا چشمی سے آنکھیں پھیر لیں۔ باپ کی حویلی جس میں سب کا مشترکہ حصہ تھا، باہمی مشاورت کے ساتھ سب نے بیچ دی، یہ کہہ کر کہ اب اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، لہٰذا اس حویلی میں ہمارا رہنا بیکار ہے۔ ہمارے حصے کی برائے نام رقم ہمیں دی گئی، جس سے میری ماں نے ایک چھوٹا سا مکان ایک پرانے محلے میں خرید لیا۔ جب بھائیوں سے پوچھا گیا تو کہنے لگے، اب ہر ایک کے حصے میں اتنی ہی رقم آئی ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اچھے رہائشی علاقوں میں اپنی اپنی حویلیاں خرید لیں، اور میں اندر ہی اندر کڑتا رہا۔ ماں کے سامنے جب اپنے غصے کا اظہار کرتا اور کڑتا تو وہ مجھے خاموش رہنے کا کہتی۔ ہمارے باپ شیخ کرامت کو یہ معلوم ہوتا تو کبھی ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ ہوتا، وہ ہمیں اپنی زندگی میں ہی الگ کر دیتا۔ میری ماں مسکرا کر کہتی، اس وقت تم بہت چھوٹے تھے، اگر اتفاقیہ طور پر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرے باپ نے اتنی دولت کیسے بنائی تو شاید مجھے اس بات کا کچھ پتہ نہ چلتا، بلکہ میری ماں یہ کہتی کہ تمہارا باپ بڑا کاروباری انسان تھا، جبکہ ہمارے شہر کے لوگ کہتے کہ تمہارے باپ کے پاس جادوئی طاقت تھی، وہ چاہتا تو یہ پورا شہر خرید سکتا تھا۔ حقیقت کیا تھی اس بات کا تو مجھے علم نہیں تھا۔ اس وقت بوسیدہ سے پرانے مکان میں اپنی ماں کے ساتھ زندگی کے دن کاٹنے لگے، مگر میں جوان تھا اور نوجوان خون جوش مارتا ہے۔ میری عمر محض 20 سال تھی، صحیح اور برے کی بھی تمیز نہیں تھی۔ ایک دل چاہتا تھا کہ سوتیلی ماؤں کو بھائیوں سمیت قتل کر دوں جنہوں نے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، مگر میری ماں جو ہمیشہ سے صابر اور شاکر تھی کہتی کہ زندگی کا یہ مشکل وقت بھی کٹ جائے گا۔ اگر ہم نے دنیا کے عیش و عشرت دیکھے ہیں تو یہ بھی خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ ہمارے پاس موجود جمع پونجی تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ میں کام کی تلاش میں نکلتا مگر حالات کچھ ایسے تھے کہ کام ملتا نہیں تھا۔ کچھ یہ بات سوچ کر شرما جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ شیخ کرامت کا بیٹا اور چلا محنت مزدوری کرنے، لیکن محنت کرنے میں کیا آر ہے، مجھے کسی نے گھر میں راشن ڈال کر تو نہیں دینا تھا۔ دل بہت کڑتا تھا بھائیوں کے رویے پر اور سوتیلی ماؤں کی اس سلوک پر، مگر میری ماں ہمیشہ مجھے چپ رہنے کا درس دیتی۔ ماں نے حالات دیکھتے ہوئے گلی محلے کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ماں کو کام کرتے دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگتا، مگر کیا کرتے، آخر پیٹ کا دوزخ بھرنا بھی تو تھا، اس کے لیے کھانا بھی ضروری تھا۔ میں نے دن رات یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میرا باپ کس طرح امیر ہوا تھا اور مجھے اس کی طرح دولت کیسے حاصل کرنی ہے۔
माँ से पूछता कि माँ, शहर वाले कहते हैं कि मेरे बाप के पास जादुई ताकतें थीं। वो कहती मुझे नहीं मालूम, लेकिन तेरा बाप वाकई बहुत अच्छा और नेक इंसान था और उसे अल्लाह ताला ने ताकतें भी अता की थी। इस पुराने मोहल्ले में मेरी दोस्ती कुछ लोगों से हो गई। वो जानते थे कि मैं शेख करामत का बेटा हूँ। शेख करामत इस शहर की मशहूर शख्सियत थे। लोग मेरे बाप को रूहानी पेशवा और कुछ लोग जादूगर समझते थे। कहते थे तेरे बाप ने हमजाद काबू कर रखा था, तुझे मालूम है क्या? एक दिन नूरुल अमीन ने मुझे कहा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान होकर उसे देखने लगा। नूरुल अमीन मेरा दोस्त था, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता और इसी गली में रहता था। मैंने पूछा हमजाद क्या होता है? मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, अजीब आदमी है तू, तुझे हमजाद का नहीं मालूम? हमजाद इंसान का अपना ही अक्स लतीफ़ होता है, लेकिन बेपनाह क़ुव्वतों का मालिक होता है। उसे बस में करना कोई आसान काम नहीं, मगर सुना है जो उसे काबू में कर ले वो उसके लिए हर काम चुटकी बजाकर कर देता है। मैं उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब, क्या वो जिन होता है? वो फिर हंसकर बोला, अरे नहीं बुद्धू, जिन नहीं होता, बस यही समझ ले कि हमारे जिस्म का एक अक्स होता है और एक परछाई की तरह होता है। एक जिन की तरह उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या उसे काबू किया जा सकता है? मेरी बात सुनकर वो बोला, नहीं, बहुत मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कर सकता। लाखों में कोई एक ऐसा होता है, बल्कि लाखों में भी नहीं, शायद उससे भी ज़्यादा। हमने सुना है तेरे बाप ने ये काम कर दिखाया था। मैं उससे कुछ मज़ीद पूछना चाहता था, मगर वो इसे एक अजीब सा मौजू समझकर इधर उधर की बातें करने लगा। जब से उसने ये बात की थी, ये बात मेरे दिल में बैठ गई। मेरे सबसे बड़े भाई का नाम गुलशाद था, जो इस शहर को छोड़कर अपना हिस्सा लेकर कराची जाकर बस गए। उसके बाद दूसरे नंबर पर दिलशाद भाई थे, वो भी इसी शहर में थे। मेरी माँ कहने लगी, दिलशाद के पास जाओ, उसने हमसे बिल्कुल नाता तोड़ लिया है, मगर वो नरम दिल का है, हो सकता है तेरा भाई तेरी कुछ मदद कर दे। उसकी बीवी जुबैदा बेइंतहा तेज़ औरत थी। दिलशाद मेरा भाई अच्छे दिल का मालिक था, मगर मुकम्मल तौर पर बीवी के कब्ज़े में था। बीवी उस पर हुक्म चलाती थी। जुबैदा को दिलशाद भाई के लिए गरीब घराने से ब्याह कर लाए थे, मगर जब से वह ब्याह कर हमारे घर आई थी, तब से उसने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। उसने मुकम्मल तौर पर मेरे भाई को अपने बस में कर लिया था। वो भाई की सूरत भी किसी दूसरे को दिखाना नहीं चाहती थी। मैं उसके घर माँ के कहने पर चला गया। माँ कहने लगी थी कि वो अच्छी तबीयत का मालिक है, ज़रूर तुझे कुछ ना कुछ ऐसी नसीहत देगा या तेरी मदद करेगा, कम से कम तुम्हें कहीं नौकरी पर ही रखवा देगा। वो मंडी में बड़ा आड़ती बन चुका था, बहुत बड़े कारोबार का मालिक था। ये तो वो कर सकता था कि मुझे कहीं नौकरी पर रखवा देता, मगर मुझे खुदा जाने क्यों उससे किसी अच्छाई की उम्मीद ना थी। मगर माँ के बार बार कहने पर मैं उसके घर की तरफ चल पड़ा। मैं पहली बार उसके घर आया था जब से हम भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हुए थे। उसकी हवेली और शान शौकत देखकर दंग रह गया। वो तो कहता था कि हवेली बेचने के बाद बहुत थोड़ी रकम हमारे हिस्से में आई है, तो फिर उसने इतनी बड़ी हवेली कैसे ख़रीद ली, और कारोबार भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर गया। आखिर राज क्या था? इतना तो मैं समझ ही चुका था। हवेली के बड़े दरवाजे पर शेख दिलशाद अहमद की तख्ती अवेज़ा थी। दस्तक देने पर एक मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे पूछा कि क्या साहब घर पर हैं? कहने लगा, जी हाँ, आप कौन हैं? मैंने उन्हें बताया कि उन्हें जाकर बताओ कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आया, दरवाज़ा खोला तो उसके पीछे अपनी भाभी जुबैदा को देखकर मेरे माथे पर सलवटें पड़ गईं। बज़ाहिर बड़ी खुशदिली से बोली, अरे आओ ज़ाहिर, कैसे आना हुआ, अंदर चले आओ, बाहर क्यों खड़े हो? मैं चारों नाचार उसकी तरफ देखते हुए अंदर दाखिल हुआ। मुझे दिलशाद भाई से मिलना है, मैंने अंदर दाखिल होते हुए कहा। मैंने अंदर सहन पर नज़र दौड़ाई। काफ़ी बड़ी हवेली थी। कहने लगी, दरअसल तुम्हारे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं, आराम कर रहे हैं, सो गए हैं। अगर तुम कहते हो तो मैं जगा देती हूँ, वैसे अभी कुछ देर पहले सोए हैं। मैंने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, हाँ जगा दीजिए, मुझे ज़रूर मिलना है उनसे। मैं जानता था वो बड़ी शातिर औरत है, जानबूझकर नहीं चाहती कि मैं अपने भाई से मुलाकात करूं। उसने बड़े मेहमान खाने में मुझे बिठाया और एक कमरे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आई और कहने लगी, अंदर आ जाओ, तुम्हें भाई बुला रहे हैं। मैं अंदर दाखिल हुआ। दिलशाद भाई बिस्तर पर आराम कर रहे थे। मैंने उनको सलाम किया। कहने लगे, आओ आओ ज़ाहिर, कैसे आना हुआ, बैठो, सब खैरियत तो है ना? माँ जी कैसी हैं? भाई जी हालात ठीक नहीं है, आपको मालूम है कि मेरे पास रोज़गार नहीं है। माँ घरों में लोगों के काम करके हम दोनों की ज़िंदगी की गाड़ी को खींच रही है, बस इसीलिए हाजिर हुआ था। मेरी बात काट कर एकदम जुबैदा बोली, ये भी तो घर में बीमार पड़े हैं, कारोबार का लाखों में नुकसान कर चुके हैं, बस इसीलिए हाजिर हुआ था। मेरी बात काट कर एकदम जुबैदा बोली, ये भी तो घर में बीमार पड़े हैं, कारोबार का लाखों में नुकसान कर चुके हैं, बस इसीलिए हाजिर हुआ था। मेरी बात काट कर एकदम जुबैदा बोली, ये भी तो घर में बीमार पड़े हैं, कारोबार का लाखों में नुकसान कर चुके हैं,
भाई कहने लगे, हाँ यार बहुत नुकसान हुआ है कारोबार से, बस इसी वजह से कुछ सेहत ख़राब हो गई, बिस्तर पर पड़कर रह गया हूँ। अगर ज़ुबैदा का बाप हमारी मदद ना करता तो बस पता नहीं क्या हाल होता हमारा। तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ भाईजान, मुझे आपसे रुपए पैसे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं अभी इतनी ही बात की थी कि एकदम ज़ुबैदा भाभी जो शरबत लेने बाहर गई थी, शरबत का गिलास उठाई अंदर दाखिल हुई और मुझे पकड़ाते ही बोली, तुम्हारे भाई के हालात काफ़ी ख़राब हैं, दुआ करो, बहुत ही कसम पुरसी के हालात हैं। इन्होंने कारोबार में बहुत घाटा खाया है, बहुत से लोगों से कर्ज भी ले रखा है, हमारे हालात तो खुद ख़राब हैं। दिलशाद भाई ने एकदम उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे भाई से बात करने दो। मगर ज़ुबैदा ने घूर कर अपने खामद को देखा तो वो बिल्कुल खामोश हो गए। तुम बोलो ज़ाहिर, क्या कहना चाहते हो? अगर कोई राशन वगैरह की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। अगर पैसे की बात है तो भाई हमारे पास रुपए कहाँ से आए, हम तो खुद कोड़ी कोड़ी के मोहताज होकर रह गए हैं। ज़ुबैदा की बात पर मेरा खून खोलने लगा जब उसने कहा कि हम खुद कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो गए हैं। दिलशाद भाई और गुलशाद दोनों की माँ मर चुकी थी। मेरी माँ ने दिलशाद की शादी करके जब ज़ुबैदा को बड़े चाव से इस घर में लाई थी, हज़ारों रुपए की बरसात कर दी थी, हथेली का छाला बनाकर रखा था। मगर आज इस औरत के तेवर ही बड़े अजीब से लग रहे थे, ऐसे अनजान बन रही थी जैसे हमें जानती ही ना हो। इससे पहले कि इरशाद भाई कुछ और कहते, मैंने कहा, ठीक है भाईजान। मैं उठ खड़ा हुआ, अरे बैठो तो सही, शरबत तो पी लो। नहीं भाईजान, मुझे नहीं शरबत पीना, ये कहकर मैं तेज तेज कदमों से बाहर निकल आया। दिलशाद भाई मुझे आवाज़ें देते रह गए, मगर निकलते निकलते ज़ुबैदा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, अजी जाने दो, हमने क्या यतीम खाना खोल रखा है जो सबकी मदद करें? खुद हमारी 2 बेटियां हैं जो जवान हो रही हैं, कल कलां को उनकी शादियां भी करनी हैं। बस इससे ज़्यादा मुझे सुनने की हिम्मत न थी। मैं फ़ौरन उनकी हवेली से बाहर निकल आया। दिलशाद की और उसकी बीवी ज़ुबैदा की इस बेरुखी पर बहुत दिल दुखा था, लेकिन मुझे ज़ुबैदा की बातों का इतना दुख नहीं था, वो तो खैर गैर थी, लेकिन दिलशाद तो मेरा भाई था। एहसान फरामोशी की इंतहा कर दी थी ज़ुबैदा ने। गरीब घराने से उसे दिलशाद की पसंद पर ब्याह कर लाए थे और हमने कोई एतराज़ नहीं किया था, मगर आते ही उसने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। घर पहुंचा तो माँ मेरी मुंतज़िर थी, कहने लगी, क्या बना? मैंने कहा, मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, वो अपने कारोबार में मसरूफ़ थे, मैंने बहाना बना दिया। इसके बाद माँ अगले 2 रोज़ तक मेरे पीछे पड़ी रही कि जाओ दिलशाद से मुलाकात करो, मगर मैं उससे मिलना नहीं चाहता था। माँ को क्या जवाब देता कि मैं उससे मिल चुका हूँ, उसने आगे से ये इज़्ज़त अफजाई की है, जहाँ जाता नाकामी होती। आखिर बहुत दिनों के बाद किस्मत की देवी मुझ पर मेहरबान हो ही गई। मोहल्ले के एक शरीफ इंसान को मेरी हालत पर रहम आ गया। नज़ीर उस्मानी साहब हमारे ही मोहल्ले में रखते थे, जिस मोहल्ले में हमने ये नया मकान ख़रीदा था। वो अच्छे खासे मालदार आदमी थे, खूब जद्दी पुश्ती जायदाद के मालिक थे। हमारे मोहल्ले में उनका खासा बड़ा शानदार मकान था। एक बार उनके साथ गली में मुलाकात हो गई तो कहने लगे, अरे भाई ज़ाहिर मियाँ, कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं जनाब, बस फारिग हूँ। मैंने उस्मानी साहब की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई फारिग हो, क्या मतलब? मतलब ये कि बेरोज़गार हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ। अम्मा भैया, तुम जैसा पढ़ा लिखा आदमी कहाँ जनाब, मैं तो सिर्फ मैट्रिक पास हूँ। अरे हाँ, कुछ भी है, आखिर पढ़ना लिखना तो जानते हो ना। अच्छा, अगर तुम्हें काम की कोई पेशकश हो तो मैंने खुश होकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये तो आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। अरे मियाँ, मुझे तो नहीं, खैर मेरे रिश्ते की एक बहन है, उन्हें घर में एक बाएतमाद आदमी की ज़रूरत है जो उनके घर के काम सर अंजाम दे सके। कुछ ज़रूरी काम तुम जानते हो ना घरों के, ये सब मामला मुझ पर छोड़ रखा गया है। तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी, बस उन्हें एतमाद का आदमी चाहिए। मेरी रिश्ते की बहन लगती है। उनकी 2 ही अफराद हैं घर में, एक उम्र रसीदा खातून है, उनकी बुआ जी, और मेरी बहन जी। वो बाहर आ जा नहीं सकती मियाँ, तुम तो जानते हो कि बापर्दा और अच्छे ख़ानदानी असर व रसूख वाली ख़वातीन बाज़ारों में जाना पसंद नहीं करती। ठीक है जी, इन हालात में ये नौकरी मुझे नेमत खुदाबंदी लग रही थी। शेख ज़ाहिर, शेख करामत का बेटा अब लोगों के घर में नौकरी करेगा, ये सोच कर हंसी आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। बहरहाल जैसे भी हालात हो, इंसान को मुकाबला तो करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी तो पेट मांगता है, इसलिए मुझे नौकरी तो बहरहाल करनी थी, चाहे मजबूरी के तहत ही। लेकिन ज़रूरी था कि मैं जल्द अज जल्द उनसे मिलकर मामला तय करूं। उस्मानी साहब कहने लगे, मैं उनसे बात करके तुम्हें फिर आगाह करूंगा। बिलाखिर उस्मानी साहब की वजह से मुझे नौकरी मिल गई। हमारे शहर बदायूं से 12 किलोमीटर दूर एक देहाती इलाके में बड़ी शानदार हवेली में वो खातून मुकीम थीं। उम्र कोई 50-55 साल के करीब होगी, जबकि उनके साथ एक बड़ी बुआ जो किसी नवाब साहब की बेवा थीं। ख़ानदानी ठाट बाट थे, लेकिन लगता था कि जैसे वक्त और ज़माने के साथ साथ नवाबी और शान बान भी मांद पड़ गई थी।
सबाहत खानम उनका नाम था। उन्होंने मुझसे चंद सवालात किए। मैंने उस्मानी साहब का हवाला दिया तो उन्होंने मुझे मुलाजिम रख लिया। 300 रुपये माहवार तनख्वाह मेरे लिए नेमत खुदाबंदी थी। उस ज़माने में 300 रुपये की बड़ी कदर हुआ करती थी। 300 रुपये में मैं और मेरी माँ का घर का खर्च बहुत आसानी से चल सकता था। सबाहत खानम ज़रा कम ही घर से बाहर निकलती। घर से क्या, वो तो अपने कमरे से भी बहुत कम निकलती। मेरा सामना अक्सर बड़ी बुआ से हुआ करता, जो बेचारी खामोश कुर्सी पर बैठी रहती। घर के तमाम अमूर सौदा सलफ से लेकर ख़रीदारी तक मुझे सर अंजाम देने होते। उनका ज़रिया रोज़गार उनकी जद्दी पुश्ती ज़मीनें थीं, जहाँ से उनको गेहूँ दाने और साथ साथ उनकी रहन दी हुई ज़मीनों से काफ़ी रकम भी मिल जाती थी। सबाहत खानम के खामद फौत हो चुके थे। उनकी नौकरानी साबिरा के ज़रिए मुझे मालूम हुआ। मेरी माँ इस नौकरी की वजह से बहुत खुश थी, मगर मुझे भाई दिलशाद के रवैये पर बड़ा अफसोस होता था। सब भाई अपनी अपनी ज़िंदगी और अयाशियों में मगन थे। हमें किसी से कोई तवक्को नहीं थी। वैसे भी उनकी हमसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। इस हवेली में करने के लिए कोई ख़ास काम नहीं होता था। मैं बैठा बैठा बोरियत का शिकार होता रहता। हवेली का माहौल बड़ा पुरस्रार था। हर सू खामोशी छाई रहती, मौत की सी खामोशी। साबिरा काम करके वापस अपने घर चली जाती। उसने हंडिया पकाना और घर के चंद कुछ काम करने होते। वो काम से जल्द ही फारिग होकर अपने घर चली जाती। उसके बाद तो बिल्कुल खामोशी ही रहती। मुलाजमत करते करते 3 महीने गुजर चुके थे। इस हवेली की पुरस्रारियत मेरी समझ से बाहर थी। बुआ जी बेचारी बोल नहीं सकती थी। खामोश नज़रों से हर वक्त बैठी सहन में घूरती रहती। मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, मगर वो बस चुपचाप नज़रों से मुझे देखती रहती, कोई जवाब नहीं देती। मुझे ऐसा महसूस होता शायद उनकी कुव्वत समात काम नहीं करती थी, इसीलिए मेरे कोई लफ्ज़ भी उनके कानों में किसी किस्म की हरकत पैदा ना कर सकते थे। सबाहत खानम कमरे में क्या करती रहती थी, ये एक अलग सवाल था, मगर इस घर में रहने के नाते से मुझे अब इस बारे में तजस्सुस पैदा होने लगा था। मुझे मालूम था कि मैं इस घर का मुलाजिम था। मुझे अपनी हैसियत मालूम थी। मुझे उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं थी। अगर उन्हें मालूम पड़ गया तो मेरी मुलाजमत जाती रहेगी। बड़ी मुश्किल से इतनी अच्छी नौकरी मिली थी, मगर मुझे ये ख्याल और तजस्सुस तड़पाए जा रहा था कि आखिर सबाहत खानम हर वक्त अपने कमरे में पड़ी क्या करती रहती हैं। मुझे देखना तो चाहिए। एक दिन मैंने मौका पाकर नौकरानी साबिरा को रोकते हुए कहा, साबिरा ज़रा बात तो सुनो। वो कपड़े से हाथ पोंछती हुई मेरी तरफ आई और मुड़कर बोली, हाँ ज़ाहिर भाई, क्या बात है। वो मेरी तरफ मुस्कुराती हुई निगाहों से देख रही थी। साबिरा, अगर आप बात अपने तक रखो तो एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। वो कहने लगी, हाँ हाँ पूछो। ये सबाहत बेगम हर वक्त अपने कमरे में घुसी क्या करती रहती हैं? मेरे इस सवाल पर वो अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैंने गड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं, मुझे तो कोई मतलब नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था। अरे भाई, नौकर हो तो नौकर ही रहो। वो तुनक कर बोली, मालिकों के मामलात में मुदाखलत या उनमें टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। ऐसा ना हो कि किसी मुश्किल में पड़ जाओ। अरे तुम तो यूं ही नाराज़ हो रही हो, मेरा मतलब तुम नहीं समझी। बस बस, तुम्हारा जो भी मतलब है अपने काम से काम रखो। उसके इस जवाब पर मैं मुंह बनाकर रह गया, मगर मेरे दिल में यह तजस्सुस जड़ पकड़ता जा रहा था कि आखिर सबाहत खानम अपने कमरे से क्यों नहीं निकलती। वो बहुत कम निकला करती थी और इन 2 हफ्तों में मैंने महज उसे 3 मरतबा देखा था। वो जब उसने मुझे पूरे हफ्ते के सामान के लिए इकट्ठे पैसे देने होते। अक्सर साबिरा ही घर की ज़रूरत की चीज़ें मुझसे मंगवाया करती और मुझे सब कुछ बताया करती कि फ़लाँ चीज़ ले आओ या फ़लाँ रोज़ ये चीज़ ले आना। एक रोज़ मौसम बहुत अबरालूद था। थोड़ी देर में तूफ़ानी और तेज़ बारिश शुरू हो गई। शाम का वक्त था और मुझे छुट्टी करके घर वापस जाना था, मगर तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से मुझे हवेली में रुकना पड़ गया। साबिरा घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, ज़ाहिर जल्दी से जाओ और कहीं से तांगे का बंदोबस्त करो। बड़ी बुआ जी को हकीम साहब के पास लेकर जाना है, उनकी तबीयत कुछ ख़राब है। अभी लफ्ज़ उसके मुंह में ही थे कि अचानक पीछे सबाहत खानम का चेहरा नमूदार हुआ। उनकी ज़ोरदार आवाज़ आई, ज़ाहिर तुम तांगा ले जाओ और हकीम साहब को यहीं ले आओ। बुआ जी नहीं जा सकती, उनकी हालत बहुत ख़राब है। अचानक ही उनकी तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब हो गई। मैंने पहली मरतबा सबाहत खानम को गौर से देखा। उसके चेहरे पर बेहद परेशानी थी। जी बीवी, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहते ही मैं फ़ौरन बारिशी में निकलकर दौड़ पड़ा। गली से निकलकर सड़क तक आया। मुझे हकीम साहब का घर मालूम था। हकीम साहब पहले भी इस घर में 1-2 मरतबा चक्कर मेरे होते हुए लगा चुके थे। उनका घर ज़रा फासले पर था। मैं तेज़ तेज़ दौड़ता हुआ चला जा रहा था। मैं दौड़ते दौड़ते इधर उधर निगाहें दौड़ा रहा था कि शायद रास्ते में कोई तांगे वाला मिल जाए।
मगर मेरी भी सोच कितनी अजीब थी। इस तूफानी बारिश में किसी तांगे वाले का मिलना मुमकिन नहीं था। दौड़ते दौड़ते मैं थोड़ी देर में हकीम साहब के मकान तक पहुंच गया। हकीम साहब के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। मालूम होता था शायद हकीम साहब भी भंग पीकर सो चुके थे, क्योंकि काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी हकीम साहब नहीं उठे। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटा। फिर थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? नींद में डूबी हुई हकीम साहब की आवाज थी। मैंने जोर से कहा, हकीम साहब मैं जाहिर हूं, सबात खानम का मुलाजिम, आपको साथ लेकर हवेली जाना है। अरे भाई कौन जाहिर? अंदर से वही उकताहट भरा लहजा सुनाई दिया। दरवाजा तो खोलिए हकीम साहब, मैं जाहिर हूं, सबात खानम का मुलाजिम। मैंने फिर कहा तो दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। हकीम साहब आंखें मलते हुए दरवाजा खोलकर मुझे देखने लगे और मुझे पहचानने की कोशिश करने लगे। हकीम साहब को हवेली आते जाते मैं देख चुका था और उन्होंने भी मुझे देखा हुआ था। वो मुझे पहचान कर बोले, अरे भाई तुम इस वक्त? जी हकीम साहब, मुझे बड़ी बीबी साहबा ने भेजा है। बुआ जी की हालत बड़ी सख्त खराब है, आपको मेरे साथ इसी वक्त चलना होगा। मगर इस वक्त? वो हैरानी और बेजारी से बोले, जी हाँ, बुआ की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा मैं आता हूँ। ये कहकर वो वापस मुड़े। थोड़ी देर में अपना हकीमी वाले सामान वाला थैला उठाए बाहर आए। फिर बारिश को देखकर बहने लगे, मगर बियाँ बारिश में कैसे जाएंगे? हकीम साहब फिलहाल तो किसी तांगे का मिलना मुमकिन नहीं। अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपको बारिश में ही मेरे साथ चलना होगा, मजबूरी है। मगर बारिश में भीग कर तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। ये कहकर हकीम साहब कुछ देर खड़े सोचते रहे, फिर वापस पलटे और चंद मिनटों के बाद वापस आए तो उन्होंने एक बारिश वाली बरसाती पहन रखी थी। दरवाजा बंद करते हुए मेरी तरफ मुंह फेर कर कहने लगे, चलो भाई। मैं और हकीम साहब तेज बारिश में तेज तेज कदमों से हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद हम हवेली के दरवाजे पर थे। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे सबात खानम की घुटी घुटी चीखों की आवाज सुनाई दी। हम तेजी से बड़े कमरे की तरफ बढ़े, मगर ये क्या, अंदर का मंजर देखकर तो मेरा दिल दहल कर रह गया। बुआ जी सामने बिस्तर पर नींद दराज थीं, मगर उनकी गर्दन ढलक चुकी थी। उनके सिरहाने बैठी सबात खानम ज़ारो ज़ार रो रही थी और साथ साबरा खड़ी हुई अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी। हकीम साहब ने फौरन आगे बढ़कर बुआ की नब्ज देखी तो जोरदार आवाज में बोले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। मुझे मालूम हो गया कि बुआ मर चुकी थी। मेरे वहां से हवेली से निकलते ही शायद बड़ी बुआ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। खुदा मालूम नहीं क्या हुआ। हकीम साहब कुछ देर अफसुर्दा बैठे रहे, फिर उठकर बड़ी मोहब्बत से सबात खानम के सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटी हौसला करो, बहन जी का वक्त बुरा हो चुका था। इन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा जिससे इनकी मौत फौरन वाक़या हो गई। हकीम साहब सबात खानम को तसल्ली देते हुए वहां से रुखसत हो गए। तूफानी रात, जोरदार बारिश, सबात खानम और बुआ बेगम का मुर्दा वजूद और हम तीन नफूस यानी साबरा, मैं और सबात खानम। हवेली के आस पड़ोस में तो कोई था नहीं, इसलिए किसी का भी आना जाना नहीं था। वैसे भी मकान काफी दूर दूर थे। मैं अब सोच में पड़ गया कि मुझे जाना चाहिए या ठहरना चाहिए। शायद मौसम की खराबी की वजह से मेरी माँ समझ गई होगी कि मैं बारिश की वजह से आज रात घर नहीं आ सकूंगा। वैसे भी मुझे सुबह जाना चाहिए, रात यहाँ ठहरना चाहिए। इन्हें तसल्ली देने के लिए भी कोई होना तो चाहिए, और वैसे भी इस घर में कोई मर्द तो था नहीं, सिर्फ साबरा नौकरानी थी और सबाहत बेगम। मैंने इस दिल में फैसला कर लिया कि मैं आज रात यहीं रुकूंगा। साबरा बेआवाज रो रही थी और सबाहत खानम सर झुकाए रो रही थी, मगर उनके रोने की आवाज़ें बहुत मध्यम थीं। मालूम नहीं कि सबाहत खानम और साबरा को रात को नींद आई या नहीं, मगर मैं सारी रात वहीं बैठा नींद के झोंके लेता रहा। सुबह फजर की अजान की आवाज़ कहीं दूर होती हुई सुनाई दी। मुझे जैसे अचानक होश आ गया। सुबह की सफ़ेदी फैलते ही मैंने बाहर निकलकर चंद करीबी मकान वालों को इस फौतगी की इतला दी, मगर वो दूर थे, मगर हमारी मदद के लिए फ़ौरन चले आए। कफन दफन का इंतज़ाम किया, कब्र खुदवाई गई और तकरीबन दोपहर से पहले पहले बुआ की तदफीन कर दी गई। कब्रिस्तान हवेली से कुछ दूर था, मगर इतना भी नहीं। तदफीन के बाद मैंने सबाहत खानम से इजाज़त चाही कि मेरी माँ परेशान होगी, मैं उनको इतला दे आऊँ, फिर आज रात को मैं यहीं आ जाऊँगा। सबाहत खानम ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं घर पहुँचा तो उस वक्त मेरी माँ मेरी राह देख रही थी। मुझे देखकर बेचैन हो गई। मैंने बताया कि इस तरह रात को बुआ फौत हो गई, जिसकी वजह से मुझे हवेली में रुकना पड़ गया। उनके इंतकाल की वजह से मुझे हवेली में ठहरना पड़ा था और आज रात मुझे फिर रुकना पड़ेगा। माँ ने बाखुशी इजाज़त दे दी, ये कहते हुए कि इस वक्त वो गम की हालत में है, वहाँ पर किसी मर्द का होना ज़रूरी है। शाम के वक्त मैं घर से वापस हवेली में लौट आया। साबरा ने बताया कि वो अपने कमरे में मौजूद हैं सबाहत खानम, और बहुत परेशान और उदास हैं।
बुआ के जाने से हवेली मेरे लिए तो खास कर वीरान हो चुकी थी। पहले फिर वो बेचारी सहन में बैठी हुई नजर आती थी, मगर अब तो सहन भी वीरान और खामोश पड़ा था। बाएं तरफ हवेली के एक छोटा सा बाग था, जहां आम के पेड़ और कुछ दूसरे पेड़ लगे हुए थे। इस वक्त वो बाग भी बड़ा वीरान और सुनसान नजर आ रहा था। साबरा काम खत्म करने के बाद शाम के वक्त अपने घर चली जाती। हवेली का सन्नाटा दम घुटने जैसा लगने लगता। शाम का अंधेरा फैलने लगा तो साबरा मेरे पास आई और कहने लगी, जाहिर भाई मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम आज रात यहाँ रुक जाओ। मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे अलावा उन्हें संभालने वाला कोई नहीं। बड़ी मुश्किल हो जाती है, वरना मैं जरूर यहाँ ठहर जाती। अगर खाना खाना है तो रसोई में पड़ा है, भूख लगे तो वहां से ले लेना। मैंने बीबी जी से कहा था, मगर वो नहीं खा रही, कहती हैं मुझे भूख नहीं। साबरा चली गई तो मैं फिर से अकेला हो गया। सहन में एक चारपाई पड़ी हुई थी, मैं उसी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा कि जिंदगी भी अजीब है। मेरी कैसी अजीब हालत हो चुकी है। यहाँ किसी के दर पर पड़ा नौकरी कर रहा हूँ। मेरे भी कई सुहाने ख्वाब थे। मैं भी उसी शख्स की जिंदगी जीना चाहता था जो मेरा बाप था। मुझे याद पड़ता है कि मैंने बचपन बहुत खुशहाली में गुजारा था। जिस वक्त बाप की मौत हुई उस वक्त मेरी उम्र बमुश्किल 9 या 10 साल होगी। बाप का साया सर से महरूम होते ही जैसे बेबसी और बदहाली ने हमारे घर का रास्ता देख लिया। इस नौकरी की वजह से फाकों से तो बच गया, वरना शायद आज 2 वक्त की रोटी भी देखने को तरस रहा होता। मगर ये जिंदगी भी तो कोई जिंदगी नहीं। कब तक दूसरों के दर पर पड़ा रहूंगा। मुझे कुछ करना चाहिए, कोई लंबा हाथ मारना चाहिए। मगर लंबा हाथ मारा भी जाए तो आखिर कैसे, कुछ समझ भी तो आए। अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं फौरन चारपाई से उठ खड़ा हुआ। अंदरूनी दाखिली रास्ते से सबाहत खानम बाहर निकलती दिखाई दी। वो बाहर आई और मेरी तरफ गौर से देखने लगी। वो चली गई? वो साबरा के बारे में पूछ रही थी। जी हाँ, वो कह रही थी कि उसके बच्चे घर पर। हाँ ठीक है, मैंने उससे कहा था कि तुम चली जाना। देखो वो मेरे कमरे की दिए की रोशनी कुछ बुझ रही है, उसमें ज़रा तेल तो डाल दो। उनकी बात सुनकर मैं फौरन वहाँ से उठकर रसोई की तरफ पहुँच गया। रसोई में तेल पड़ा हुआ था। ये पहली बार था कि मैं सबाहत खानम के कमरे की तरफ जा रहा था। रसोई में से तेल लेकर मैं उनके कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में दाखिल हुआ तो अजीब सी खुशबू नथनों से टकराई। एक ऐसी खुशबू जो इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। कमरा निहायत नफीस मगर मुख्तसर सामान से आरास्ता था। एक तरफ छोटी सी अलमारी थी और एक तरफ ताकचा सा बना हुआ था जिस पर एक छोटा सा चिराग जल रहा था, जिसकी धीमी सी लो अब मजीद बुझने जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे में शदीद सर्दी हो। इसका एहसास मुझे फौरन हुआ। दिए में तेल भरने के बाद मैंने रोशनी को बढ़ा दिया और तेज़ रोशनी में मैंने पूरे कमरे का जायज़ा लिया। अलमारी में बहुत सी किताबें रखी हुई थीं। इसके अलावा उस कमरे में किसी किस्म का कोई सामान नहीं था जैसा मैं ख्याल कर रहा था। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक कमरा नहीं था, बल्कि मेरी तवक्को के बरखिलाफ था। ज़्यादातर कमरा तो खाली ही था। मेरे जहन में वही तजस्सुस फिर सर उठाने लगा। कमरे में तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं या ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर सबाहत खानम आखिर इस कमरे में क्या करती रहती हैं? मैं वहीं खड़ा होकर सोचने लगा। फिर अचानक जैसे मुझे ख्याल आया कि मुझे इस कमरे से अब निकलना चाहिए। कमरे से निकलते निकलते अचानक मेरी नज़र बैरूनी दरवाजे में एक मौजूद सुराख पर पड़ी और मैं खुशी से उछल पड़ा। लो भाई, मेरा काम हो गया। मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो मुझे मिल चुकी थी। वो एक छोटा सा सुराख था, उस कमरे के दरवाजे पर दिखाई दिया, जिससे मैं बखूबी अंदर का नज़ारा कर सकता था। तो ठीक है सबाहत खानम, मैं भी देखता हूँ कि रात तुम इस कमरे में क्या करती हो। कमरे से बाहर आकर मैंने देखा सबाहत खानम सहन में टहल रही थी। जी बीबी जी, मैंने दिए में तेल भर दिया है और रोशन कर दिया है। ठीक है, ये कहकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। मैं उन्हें जाता हुआ देख रहा था। मैं फिर चारपाई पर लेट गया। रात आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी। कोई निस्फ रात का वक्त होगा। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने दाखिली दरवाजे की तरफ देखा और आहिस्तगी से उठा और दबे दबे कदमों से अंदर की तरफ बढ़ने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सबाहत खानम के कमरे के सामने आ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर सबाहत खानम मेरी ये हरकत देख लें तो मेरी ये नौकरी जाती रहेगी। कोई बात नहीं, अगर नौकरी जाती है तो जाती रहे। मैं भी अपने अंदर के तजस्सुस को ख़त्म करके छोड़ूंगा। हर तरफ गहरा सन्नाटा और खामोशी तारी थी। मैं उस दरवाजे के करीब पहुंच गया जिसके दूसरी जानिब सबाहत खानम मौजूद थी। मैं खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा, फिर आराम से नीचे बैठकर दरवाजे की दर से आंख लगाकर अंदर झांकने लगा। अंदर का मंजर अजीबो गरीब था। दिया अपनी पूरी आबोताब से रोशन था, जिसमें कमरे का मंजर वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। सबाहत खानम फर्श पर चादर बिठाए बैठी हुई थी।
आगे किताब रखी हुई थी, उसमें कुछ लिखा हुआ पढ़ रही थी। किताब फिर बंद करके उसने दोनों हाथ बांध लिए और अजीब सी कैफियत में चली जाती, जैसे वज्द में हो। सबाहत खानम की हालत उस वक्त ऐसी थी कि जैसे उसे अपने गिरदोनवा का बिल्कुल होश नहीं था। वो कुछ देर पढ़ती रही, फिर दोबारा उसने किताब खोली। कुछ देर किताब पढ़ी और फिर किताब बंद करके दोनों हाथ बांध करके आंखें बंद करके बैठ गई। अचानक वो कुछ पढ़ते पढ़ते चौंक कर उठ बैठी और उसने दरवाजे की तरफ मुड़कर गुस्से से देखा। एक लम्हे के लिए मेरे अंदर जैसे बिजली सी कूद गई। शायद सबाहत खानम को बंद दरवाजे के पीछे भी इस बात का एहसास हो गया था कि कोई आंख उसे दरवाजे की दूसरी जानिब से घूर रही है। मैं चुपके से उठा और बाहर तेज तेज कदमों से जाने लगा। अभी मैं सहन के दरवाजे के पास ही पहुंचा था कि पीछे से जोरदार आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। मेरे कदम जैसे वहीं रुक गए। मैंने पलटकर पीछे देखा। सबाहत खानम की अंगारा बरसती आंखें मुझे देख रही थीं। बदबख्त हमारा मुलाजिम होकर हमारी पीठ में छुरा घोंपता है, कनसुइयां लेने की कोशिश करता है, हमारा राज जानना चाहता है। वो बीबी जी खामोश रह, नाहिंजार तू जानता नहीं मैं सबाहत खानम हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई दरवाजे के अंदर झांकने की? बीबी जी देखिए, खामोश हो जा, दफा हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। तुझे इस बात की सख्त सजा मिलेगी। इससे पहले कि वो मुझे सफाई का मौका देती या मैं कुछ कहता, उसने मुझे हाथ के इशारे से हवेली से निकल जाने का इशारा किया। रात के इस पहर में ज़लील और रुस्वा होकर हवेली से बाहर निकल आया। वो बहुत संजीदा मिजाज की थी, ये तो मैं जानता था, मगर ये नहीं जानता था कि वो इतनी जालिम और सख्त दिल की भी हो सकती है। मैं वहाँ से बाहर निकल आया। मुझे ये नौकरी जाती हुई महसूस हो रही थी। वो सच कह रही थी, मैं मुलाजिम था। मुझे क्या ज़रूरत थी कमरे के अंदर झांक कर देखने की, वो क्या करती है या क्या नहीं। ये किसी की ज़ाती मामलात में मदाखलत है, एक जुर्म है, और ये जुर्म मुझसे सरजद हुआ था। मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए था, मगर अब मैं परेशान था। सोच रहा था कि वो अब क्या करती है। उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मुझे इस किए की सज़ा भुगतना पड़ेगी। मैं वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खटखटाया। 2-3 बार दस्तक देने के बाद मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। मुझे इस वक्त घर देखकर हैरान रह गई। ज़ाहिर तुम इस वक्त? देखो तो वक्त क्या हुआ है, खैरियत तो है? माँ घबरा कर कहने लगी, कुछ नहीं अम्मा, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं घर चला आया। मैंने माँ को टालते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। माँ की आवाज़ आई, बेटा अगर तबीयत ख़राब थी तो इतनी रात में आने की क्या ज़रूरत थी, वहीं पर आराम कर लेते। मैं उनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए बिस्तर पर जाकर दराज हो गया। वो मेरे पास आई, मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, कुछ खाना तो नहीं? मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो खामोशी से उठकर चली गई। मैं काफ़ी देर उलझन और परेशानी में गिरफ्तार रहा। नौकरी तो हाथ से जाने का मालूम था, लेकिन आखिर सबाहत खानम मुझे किस किस्म की सज़ा देगी। इसी सोचों में गुम मैं नींद की वादी में चला गया। आंख तो मेरी उस वक्त खुली जब मेरी माँ की घबराई हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई, ज़ाहिर जल्दी उठो, बाहर पुलिस आई है, तुम्हारा पूछ रहे हैं। माँ की बात सुनकर मैं बिस्तर से उछल पड़ा। अम्मा पुलिस? हाँ हाँ, एक सिपाही और एक इंस्पेक्टर बाहर खड़ा है और तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, खुदा खैर करे, न जाने हम पर कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है। माँ की ये बात सुनकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मेरा जहन फौरन सबाहत खानम की तरफ चला गया। दोस्तों ये कहानी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। उम्मीद है हमज़ाद का तीसरा सिलसिला आपको ज़रूर पसंद आएगा। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल उर्दू नाउ को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।